Do you know that when it was integrated, in which years been implemented? This art integration was introduced in the year of 1930, in 19th century. It was being introduced by John Dewey. Yeah, that time it was very popular, art integrations. Second one, what is integration? Is art education. आर्ट एजुकेशन में एजुकेशन से क्या मेन है वहां पे? In art integrated curriculum, the art becomes the approach, teachings and methods of for learning. Student means new learning objective when they engage in the creative process to establish connection between the form of another subjects. So art has different form of subjects. So we can also include art in entire subjects such as mathematics, science, SST. There is a vital role of art integration. I will explain you the introduction. The first one is introduction, that art integration is an approach. What is an approach? To teaching in which students construct, demonstrate. With therefore demonstrate and understands through an art form, students engage in a creative process which connects an art form. Another subject area means to involve आने वाले लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। Now I would like to give you some example of art integration. First one, what are the example of art integration? First one is a few more integration activities, such as being a good teacher, you have to play in the class. In the class, making instruments, playing instruments, and studies and writing also. It is also activities, and listening to music, poem, poetry, and now composing music songs, and drama games and characters also. And what are the advantages of art integrated approach? So therefore, what is art? First of all, I will analyze what is art. Art is a creative expression of individual thoughts to everyone. These expressions can be verbal. It may be verbal in the form of verbal. It may be in the form of written, acts, and in active means, or it can be visual. We can explain it visually also. I think most of the teachers are already trained here. Sometimes you are having the doubts. You are going to the smart class and with the help of smart class you can explain each and everything. For example, science, SST. Suppose that in SST there is a problem in planets. That is, where is the Jupiter? Nobody knows where is Jupiter, which is the smallest planet, which is the largest planet. You can see them with the help of the solar system. You can see with the help of animations. There are so many animations there regarding arts integration and solar system. Then later on, see definition of integrated education. What is the actual definition of integration? Integrated education, it is a cross-curricular approach. See here, it is a cross-curricular approach to teaching and learning methods based on collaboration. It is not an individual we are talking about, it is based on collaboration. It means the teaching subject with the teaching arts in the form of visual, performing, etc. Where art in any its multiple forms becomes the primary pathway to learn the subjects, topics, and also of assessments. The integration is meant not only to make the learning, but also process of the chosen subject area of integration joyfully, but it also relates itself implements, creates appreciation and understanding of the art form being utilized for this purpose. So suppose that if you have to, what is the benefit, what is the pros of arts integration in the classroom?
This is my practical experience. When you go to the class, that the children are shouting, they are not concentrate on the specific subject. At that time, what we will have to do? We have to engage first. These are the pros of the art integration. We have to engage first. How to engage the first? Suppose that everyone knows the air chapter you have learned all teachers. Air has weight. Do you know air has weight? How you can explain in the form of art integration? You can explain in the art of integrations with the help of you can take the two balloons. एक डंडे से उसमें आप दोनों बैलेंस को लगा दे, फुल करके एयर कर दिया, फुल कर दीजिए उसमें, और दोनों को हैंग करने के बाद एक को बैलून को आप उसको क्या करेंगे, उसको पिन से आप उसको कर दीजिए, उससे क्या एक बॉल को ब्लास्ट करेगा, दूसरा बॉल है ना नेचुरली क्या करेगा, एक तो डाउन हो जाएगा. It shows that the air has a weight. So now we can also experiment. We can give so many examples in KG prep. Suppose the children are very small. How we can convince with the help of art integration? You are giving now count and write. Do you know everyone count and write? How you can give the count and write? With the help of pictorial form. Suppose that give me chalk is here. You are giving some count and write to students. See example here. You have to draw the this is like that 3 and count and tell them to count it first. Tell them to count it first. 1, 2, 3. 1, 2. The children will write here 2. That is a part of also art integration. And now you can also explain with the help of different types of shapes. Square, triangle. We can make with the help of matchsticks. We can also create a square. With the help of matchstick, we can create a circle. With the कहने का मतलब है आप किसी भी shapes को different shapes को आप मैजिक स्टिक से आप बना सकते हैं. Square, triangle, rectangles, sphere, polygons, cylinders, cuboid, cubics. So see here, so suppose that this is a square. The square का matchstick को put matchstick on outline like that and paste it. The children will take interest. It shows the interest. आपने देखा था जब बच्चे को इस तरह आप आर्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में बच्चे को समझाएंगे वो आप इंटरेस्ट लेगा. See, now the motor, cross motor skill. आप लोग familiar, all are familiar about this terminologies. What do you mean by cross motor skills? Anybody? Can you tell me what does it mean by cross motor skills? The skill where children learn by doing things themselves. For example, with their own hands, with exercising and doing activity in the classroom, it helps them in analyzing and creating evaluation of the things themselves. Okay, thank you. Sit down. So motor skill is a function that involves specific movement. That involve specific movements of body, muscles to perform some specific task. That is known as cross motor skill. जैसे आप स्किपिंग करते हैं घर पे, that is a part of motor skill. आप वॉकिंग करते हैं, that is also part of motor skill. आप जो मस्कुलर क्या बॉडीज के पार्ट्स का यूज हो रहा है, जैसे आप स्किपिंग कर रहे हैं, क्या क्रॉस मोटर स्किल. That's why as mentioned here, cross motor physical. It may be in the form of physical. अभी अगर आप स्किपिंग करें फिजिकल तो यूज हाथ का हैंड का यूज हो रहा है. फिजिकल स्किल्स आर दोज व्हिच रिक्वायर होल बॉडी मूवमेंट. पूरे बॉडी का यूज होगा. अगर आप ऐसे करें तो मूवमेंट लेग का भी हो रहा है, हमारा हैंड का भी हो रहा है, रिस्ट पे भी हो रहा है. नाउ द इन्वॉल्व द लार्ज core establishing muscles of body to perform every function such as standing. खड़ा होना भी क्या है? It is also and loss of motor skills. Walking, चलना भी होगा, टहलना भी, running, jumping, sitting upright at the tables. So these are the part of cross motor skills. So it means we can say that art integrations develop motor skill also as well as also ability. आपके ability skills को भी develop करता है. It develop the also ability skills, writing skills, thinking skills. तो कैसे होगा? How we can develop with the help of art integration. So being a good teacher, we have to implement the art integration in the classroom. While taking class, you have to force how to engage the children. So you can also engage the children with the help of cross motor skill. You can also develop.
in the classroom personally. Now second point is that it is important to engage your child. बच्चे को कैसे आप engage करें in gross and fine motor activities instead of focusing on one or other, because core muscles has to be developed. आपको जो core muscles क्या हो जाएगा, it will be developed before arm and hand muscles. Third point is that gross motor skills are the necessary foundations for fine motor skills development. It means इससे क्या मिलेगा हम लोगों को बॉडी को, क्या होगा, ये एक एसेटिव रिस्पॉन्स है बॉडी के. अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, यू विल गेट बेनिफिट आल्सो. हम लोग के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए, दिस इज नॉट आल्सो ओनली स्मॉल चिल्ड्रंस एंड एज वेल आल्सो एडल्ट्स. एडल्ट्स के लिए भी मोटर स्किल बहुत बेनिफिशियल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर एवरी मैन. मैंस के लिए चाहिए, वुमेन्स के लिए. मोटर स्किल को हम लोग को डेवलप करना कैसे होगा, आप मॉर्निंग में वॉकिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए. ओके, तो मोटर स्किल्स के और भी एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. दिस इज अ इमोटिकॉन्स ऑफ मोटर स्किल्स. It has mentioned here. See, skipping, sliding. See, another example. See, gross motor skill consists. There are many gross motor skills. Below is list 3K broken down into the 3 skills area. 3 जगह ये खास यूज किया जाता है. It comprises first one is gross motor locomotor skills. Motor skills comprises crawling, creeping, hopping, running, skipping, marching, walking and tiptoe walking. अब tiptoe भी चल रहे थे, that is also part of motor skill. Now second point is that gross motor balance the rotation of skills. Gross motor क्या करता है, आपके रोटेशन स्किल्स को भी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है. हाउ इज कंट्रोल? तो सी, जंपिंग इन एयर फॉर डिस्टेंस, है ना, वॉकिंग डाउन स्टेप, वॉकिंग डाउन सीढ़ी से नीचे उतरना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मोटर स्किल्स का. बिकॉज़ मोटर स्किल्स स्टैंडिंग ऑन वन फुट, एक फुट में खड़ा होना, दैट इज द मोटर स्किल्स का पार्ट है. दिस आल्सो पार्ट ऑफ मोटर स्किल. नाउ क्लाइंबिंग, किसी भी चढ़ने का, सीढ़ी पे चढ़ना, स्टेयर पे चढ़ना, वो भी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोटर स्किल. नाउ द पेडलिंग ऑफ ट्राइसाइकिल. साइकिल ऑफ द देखा, यू हैव सीन द ट्राइसाइकिल. बच्चे लोग ट्राइसाइकिल वो पैडलिंग चलाते हैं, तो पैडल मारते हैं, वो भी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मोटर स्किल. Now final is gross motor manipulative skill. Manipulative is how to manage. कैसे मैनिपुलेट करेंगे, to be managed. Kicking a ball खींचने वाली है, बॉल खींच देखते हैं. फुटबॉल खेला हमने, you have seen saucer. Earlier name of football, that is a saucer. फुटबॉल जब खेलते हैं आपका लेग का फंक्शन होता है, that is a kicking a ball. बॉल को किक करना, माना हिट करना. After that throwing overhead, overhand. हाथ से फेंकते हैं, ठीक है. After that throwing अंडर आर्म्स का भी यूज करते हैं, जब किसी चीज को फेंकते हैं अंडर आर्म का भी हम यूज करते हैं. इसी तरह थ्रोइंग एमिंग एट टारगेट, और हम एक टारगेट डेस्टिनेशन को फिक्स करते हैं, वहां फेंकना है, यहां से आपको वहां डेस्टिनेशन में फेंकना है पहला. अब भाई कैचिंग लार्ज बॉल, कभी कभी ऐसा था बॉल को भी कैचिंग करें, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मोटर स्किल. इट मींस एंटायरली मैं कहना चाहूँ, आई हैव द वर्ड्स फॉर मोटर स्किल. द मोटर स्किल्स टू बेनिफिशियल टू एवरीवन, even though and also children and also adults. We have to implement in your classroom also. Motor skill you can introduce in the classroom. What is the use of motor skills? I have given lot of example of motor skills. You can follow. Second that, after that, how does art education help in learning? आपका जो art education कैसे मदद करता है learning में? Very simple. Art instructions help children with the development of motor skill. पहला क्या है? It develops motor skill. जैसे ही मोटर स्किल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी आपको माइंड में आएगा. उसके बाद लैंग्वेज स्किल, आपका लैंग्वेज भी डेवलप करेगा, एज वेल एज आल्सो लैंग्वेज टू बी डेवलप. विद द अबव आफ्टर दैट सोशल स्किल आल्सो डेवलप. इट डेवलप आल्सो सोशल स्किल एंड दिस इज डिसीजन मेकिंग also develop and risk taking. And inventiveness, visual arts teach learners about the color layout, perspectives and balance techniques, all techniques that necessary for presentation, visual, digital, academic work. तो ये सारा इसका क्या है? How does the art education help the learning? Learning में कैसे, टीचिंग मेथड में क्या क्या फायदा इससे होगा?
मुनाफा को क्या फायदा क्या होगा अगर इसको क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे लिए क्या फायदा होगा। आपका पहला फर्स्ट वन क्या होगा, इट डेवलप द टीचिंग, पहला क्या मोटर स्किल इंप्लीमेंट होगा फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या लैंग्वेज डेवलप करेंगे, इट डेवलप लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज है वो भी डेवलप करेगा, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद विजुअल आर्ट, अब जो विजुअलाइजेशन जो बच्चे को बताते हैं विजुअल करके मतलब पिक्टोरियल द्वारा, जब बच्चे को आप पिक्चर बना के दर्शा के ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बच्चे को बोलेंगे ए फॉर द एप्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग एप्पल वी हैव टू ड्रॉ द एप्पल्स बिग वन ऑन द ब्लैक बोर्ड, द चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। एम आई राइट रॉन्ग? अगर एप्पल को ब्लैक बोर्ड पे बना के दर्शाया जाए, रिप्रेजेंट कराया जाए, तो बच्चे में ज्यादा वो क्या हो जाएगा, वो इफेक्टिव होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट। हाँ, उसको इंटरेस्ट पैदा होगा। तो क्लास में इसी तरह हम इंगेज कर सकते हैं, कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ब्लैक बोर्ड पर बनाएं, कुछ मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट अपने दिखाएं, बच्चों दिखाएं, देखो बेटा ऐसे एक्सरसाइज है, हाथ रेज योर हैंड, नॉट योर हेड, ये भी इनको पार्ट ऑफ मोटर स्किल। तो ये सारे स्किल्स को हम लोग इंप्लीमेंट क्या करेंगे अपने क्लास में जोड़ेंगे बच्चों के साथ। इज इट क्लियर? एनी डाउट? I can show you one video regarding art innovations. ऐसा था आपने बात प्रमाण दे पाए। अरे तो ये सब लोग आर्ट इंटीग्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं, कहाँ से सब्जेक्ट्स के अंदर आर्ट को डालेंगे, ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत बार हो रहा है ना सबको। चलिए ठीक है, तो ये क्यों आर्ट्स की बात हो रही है, कैसे हम इंटीग्रेट करें, कौन कौन सी आर्ट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी बात आज हम लोग अपने वीडियो के अंदर करेंगे। इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन हो या कमेंट हो वो जरूर कमेंट करें। तो इससे पहले कि हम मॉडर्न मैन बनते, अर्ली मैन के जमाने से ही जो केव्स के अंदर लिखी गई थी बात, जो जिसको आज ज्ञान समझकर निकालते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, तो बहुत फॉर्म आर्ट की बहुत सारी चीजें मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी, है ना। हमारे मंडाला आर्ट की एक बात होगी, मंडाला आर्ट जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी हर एक के अंदर संस्कृत के एक वर्ड सर्कल से लिया। सर्कल में क्या होता है, देयर इज नो एंड टू लाइफ and you can get your spirits at any point. आर्ट जो हम मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, मैन को तो गड़बड़ जाए तो उसको बोलेंगे आप ह्यूमन नहीं बोलो, है ना। तो ह्यूमन बीइंग के लिए आर्ट बहुत सारे तरीके से, मतलब आप जो भी चीज़ करते हैं, कार बनती है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो रही होती है, आपके सिस्टम्स बन रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी होती है। आईफोन बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी, तो डिज़ाइन का बड़ा हुआ है और आजकल तो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्ट क्या है। तो बेसिकली आर्ट क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको कहते हैं आर्ट। वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, एनैक्टमेंट हो सकता है, विजुअल फॉर्म हो सकता है, या कोई भी ऐसा पोटेंशियल तरीका जिससे ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर एक और बात है, आर्ट बहुत इंक्लूसिव होती है, जो डेफ एंड ब्लाइंड या दिव्यांग लोग होते हैं ना, वो भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। माइंड के बारे में तो आपने सुना ही है ना, जहाँ पर बिल्कुल डार्क हो गए कहीं पर बारीक पेंट लगाते हैं, कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। तो देखिए आर्ट के ना अनगिनत एक्सप्रेशंस हैं और इसकी वैल्यू को एनसीएफ ने समझा और अपने लिए लगातार ये कहा है कि आर्ट इंटीग्रेट करें, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके बहुत ही बेहतर होगा, राइट। नाउ व्हाई आर्ट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आप सब लोगों ने सुना होगा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। यहाँ पर स्टेम को स्टीम बना दिया गया। स्टीम का मतलब आर्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया। ये जितनी भी चीजें हैं ना आर्ट के इर्द गिर्द ढूंढिए, जाने अनजाने, चाहे बिना जाने। मैं आज अपने वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आर्ट इंटीग्रेशन कौन से क्लास तक होनी चाहिए, मतलब ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रॉस करिकुलर अप्रोच है, जहाँ पर जो पेडागोजिकल प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखिए, यहाँ पर एक कोलैबोरेशन होगा बिटवीन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड आर्ट्स। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, मतलब कि जहाँ पर ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ग्राफिक्स बच्चों को सिखाए जाते थे, ना उसको रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्सपरिस्टिक सब्जेक्ट है जिसको बाद में स्टूडेंट या तो वोकेशनल एजुकेशन की
तरह या कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ये बच्चे का हक है कि बच्चे को रेगुलर आर्ट एजुकेशन पढ़ाई जाए। उसके अलावा आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, भाई क्यों, ये तो सवाल बार बार मन में आ रहा है कि क्यों वाई आर्ट इंटीग्रेशन। तो पॉइंट्स आपको बताती हूँ। आर्ट एजुकेशन से इंक्वायरी जनरेट होती है, क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे लिंक हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर डायरेक्टली आता है। आप जब भी करें मतलब इतने आप बोलते हैं ना खाना बनाने का पाप को देख लिया, देखिए कितनी ब्यूटीफुल आर्ट है। आप जब बनाते हैं क्या एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, क्या है उसके हाथ में बुलाओ खाया था, बहुत मजा आया, राइट। और फिर वहाँ पर तो योर एक्सपीरियंस स्टेज विद यू, आप वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो बिना सिखाए माँ जब घर में खाना बना रही हैं, तो बेटा भी बना रहे हैं, तो बच्चे उसको सीख चले जाते हैं। लर्निंग या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को बहुत ही जॉयफुल करते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों से लेकर अप टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक एंड इन हायर एजुकेशन। इनफैक्ट हायर एजुकेशन में तो क्रिएटिव डिजाइनिंग अपने आप में पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। इंटीग्रेटेड क्यों, मल्टीडिसिप्लिनरी है जी, और क्योंकि ये टॉपिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर मैंने जैसा पहले कहा ना, लर्निंग इज इंक्लूसिव, कोई पीछे नहीं छूट रहा है, हर एक इसको कर सकता है। विजुअल एक्सपीरियंसेस से एक मेंटल इमेजरी क्रिएट होती है जो थिंकिंग प्रोसेस को हेल्प करती है। अब जैसे थिंकिंग प्रोसेस की आप बात करते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे इन चीजों से कुछ नया बनाएं। हमने भी अपने स्कूल में अपने टाइम पर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसी चीजें करी, जब वो बेस्ट क्रिएट हो जाता था ना, कितना मजा आता था देखकर। सारी चीजें बुलानी, बिल्कुल नोन फैक्ट्स, लॉजिकल, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगे रहे, और आर्ट को बिल्कुल ऐसे साइडलाइन कर दी कि जिस तरह पढ़ने लिखने का काम नहीं वो ही आर्ट कर सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी सुधारते हैं और करेक्शन नहीं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आर्ट को बैक स्टेज मिला, मतलब नहीं कर पाए हम उसमें करिकुलम। क्या सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, कैसे करिकुलम में हर एक के साथ ऑर्गेनाइज करें। इतना टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट है कि फोकस हम नोन लर्निंग करते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फैक्ट है, इसको ऐसे लर्न करो, थ्योरम है, इसको ऐसे लर्न करो, राइट। ये तरीका है, फॉर्मूला है, इसे अकाउंटेंसी इधर से काम नहीं चलने वाला है। तो आर्ट इंटीग्रेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कहा इतनी तरह के डांस फॉर्म्स हमारे लिए आगे, इतनी तरह की लैंग्वेज, इतनी ब्यूटीफुल तरीका लिखने का, है ना। हमारे देश में तो यहाँ तक ये डिफरेंस नहीं करते, बच्चा को जैसे पढ़ने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में देखें, तो हमारी रीजनल लैंग्वेज में बहुत कर्वी लैंग्वेज है, और हमारी जो स्टैंडर्ड देवनागरी लिपि है हिंदी और इंग्लिश, वो भी बहुत कर्वी है। आप उतरे यहाँ 1 2 3 करें, और इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड 1 2 3 भी करती है। तो यहाँ पर भी आर्ट क्या किया जाता है, हम सिंगल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कहीं से भी कहीं तक सीखते हैं। आप पढ़ाने का फैक्ट आपको कम से कम 2 पीरियड हर क्लास के हर सेक्शन के लिए, क्लासेस 1 to 10 तक आपको लगाने हैं आर्ट के अंदर। आप विजुअल आर्ट ले सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आर्ट्स 6 स्पेसिफिक एरियाज के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और कुकिंग को भी आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स आर्ट फॉर्म की तरह एजुकेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपको ये बताया आर्ट क्या है और आर्ट इंटीग्रेशन आप कैसे करें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझना और सीखना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि बच्चों को बताया जाए। तो देखिए आजकल तो फोटोशॉप के थ्रू, एप्स के थ्रू भी बच्चे डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो भी एक आर्ट फॉर्म है। जब बच्चे कुछ करते हैं तो एग्जीबिशन लगाते हैं, वो भी आर्ट फॉर्म है। रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, वीडियो बनाना, पीपीटी बनाना, स्लाइड शो बनाना, ये भी आर्ट फॉर्म है। ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट फॉर्म है। हिस्टोरिकल हेरिटेज विजिटिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना पोस्ट फॉरेस्ट्री का, तो हेरिटेज प्लेसेस को जब हम विजिट करते हैं और उसके ऊपर कोई हम नैरेटिव्स बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, फोटोग्राफ्स खींचते हैं, आर्ट फॉर्म है। स्केचिंग जैसे मैंने बोला आर्ट फॉर्म है, राइट। स्कल्पचर या क्ले पेंटिंग आर्ट फॉर्म है। डांस को करना, कितनी ब्यूटीफुल मुद्राएं होती हैं, राइट। और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मैंने बताया गया है आपको, ज्वेलरी मेकिंग आर्ट फॉर्म है। तो मार्शल को बहुत बड़ा रोल दिया गया है हैंडीक्राफ्ट के तरीके से। और स्टोरी टेलिंग इज आल्सो एन आर्ट फॉर्म, बिकॉज आप उसमें एक्सप्रेशन करना सिखा रहे हैं।
इसके अलावा अनेकों अन्य तरीके, छोटे बच्चों को सॉन्ग पढ़ने सिखाना, कोलाज बनाना, क्राफ्ट बनाना, इंस्टॉलेशन आर्ट करना, वुड एंड मेटल वर्क। इस बात सोच कर ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें याद आ रही है, दीवारों के ऊपर कितनी सारी चीजें बनाकर लगाई हुई है आपने, मैंने और सबने। और अगर उन चीजों को आपने अंदर रख दिया था ना, टाइम आ गया उसको ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में डिस्प्ले कीजिए। आपकी बनाई हुई आर्ट से बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। मुझे तो अच्छे से याद है कि मम्मा कैसे बेडशीट्स के ऊपर पेंटिंग करना, राइट, क्रॉस स्टिच करना, एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, आर्ट वर्क करके ब्रशेस के साथ बिल्कुल आर्ट वर्क करा करते थे। और कई बार मेरे में जाते तो चावल के ऊपर अपना नाम लिख के देते थे। और हम एक पोटेंशियल चीज स्टूडेंट्स और बच्चों और लर्नर्स के लिए क्रिएट करते हैं। दिस विल बिकम पैरेलल स्ट्रीम फॉर देम दैट इन केस दे आर नॉट एबल टू परस्यू फॉर व्हाटएवर रीजन देयर एकेडमिक्स, दिस कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एजुकेशन। सो आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं या फिर मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से वंडर। आज के लिए चलिए। Okay, you have seen this video. Okay? After that, integrates the art in my classroom. First point, visual arts. We have to implement visual arts in the classroom. Second one is that encourage speaking. मेरा भी ले लो सर। You have to encourage those students to speak first. बोलने के लिए बताइए, बहुत बच्चे कुछ हेजिटेशन, दे हैव लॉट ऑफ हेजिटेशन, दे वांट टू स्पीक बट दे आर अनएबल टू स्पीक। टीचर से डरते हैं कि टीचर मारेगी बच्चे को, तो वो भी आपको क्या करना है, बीइंग अ गुड टीचर यू हैव टू encourage them to speak. After that, listening skill, you have to also develop the listening skill of the child, of the children in the class. सुनने की जो क्रिया उसको भी आपको डेवलप करना है। एग्जाम्पल आर्ट एप्लीकेशंस लर्निंग। आप लेटर ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट, आप किसी भी वोकैबुलरी को भी डेवलप कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग देखिए, तो वर्ड मीनिंग देना है इन आर्ट फॉर्म में आपको देना है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, हमें किसी बच्चे को नर्सरी क्लास या एलकेजी प्रेप में पढ़ाते हैं, तो स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, दिस आर द कॉमनली यूज्ड, एवरीवन नोज। इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। तो बच्चे आर्ट के फॉर्म में कैसे लिखना सीखेंगे, तो हम लोग के बच्चे को क्या गाइड करते हैं, बेटा फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्लैंटिंग लाइंस, 4 लाइंस कॉपी, सी राइट द स्लैंटिंग लाइंस। बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइंस कहां से बोलते हैं, ड्रॉ कीजिए। देन स्लीपिंग लाइन, तो बच्चा क्या सीखता है, ए। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। तो किसी बच्चे को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी को अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सिखा सकते हैं स्लैंटिंग लाइंस। विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइंस अल्फाबेट बनाने की सिखा सकते हैं हमें। अगर डिफरेंट शेप्स को भी बनाने के, मैंने बताया मैजिक स्टिक, डे बिफोर यस्टरडे आई हैव इंट्रोड्यूस वन दैट इज अ वॉलनट। आप लोग नाम सुना होगा वॉलनट, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं। वॉलनट से बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर टर्टल, और टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ टर्टल से बनाना है आपको। किससे बनाना है, वॉलनट। इस तरह होता है वॉलनट सी, वॉलनट या सी। मैंने बोला उस बच्चे को वॉलनट को 20 से डिवाइड, इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करो, उसके ऊपर जो आउटर पार्ट है आप उसको पेंट कर दीजिए। देन आपको रेड लाइन से एक आप डिवाइड करके मार्किंग दे दीजिए, उसके में आप गूगल आई या फिर पुट द गूगल आई, तो बच्चे ने परफॉर्म करके देखा था टर्टल। तो ये छोटी चीज आर्ट इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं क्लासरूम। आर्ट इंटीग्रेटेड इन स्कूल, इंटीग्रेशन नहीं है, आर्ट इंटीग्रेशन videos which is related to an art integrations learning. I can show you here. One of the most important video is there. नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं कला समिति अधिगम के साथ। मैं और मेरे साथी प्रयास करेंगे कि आपको इस विधा के बारे में, इस शिक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से हम समझा सकें। और मेरे साथी और मेरा परिचय मैं पहले कराना चाहूँगी। मैं हूँ प्रोफेसर पवन सूर्य, NCERT से। मैं डॉक्टर शर्वरी बैनर्जी,
कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग NCERT की सदस्य। नमस्कार साथियों, मैं रुचि वर्मा, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग NCERT में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो चलते हैं कला समेकित अधिगम पर कि कला समेकित अधिगम है क्या। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, कला और कला पे आधारित अधिगम। जब हम कला समेकित अधिगम बोलते हैं तो उसमें एकदम से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कलाओं का योगदान कैसे दिया जा सके। साथियों, NCF 2005 बात करता है कला शिक्षा की एक विषय के रूप में, और उसी के साथ जोर देता है इस बात पर कि जितना कला शिक्षा एक विषय के रूप में आवश्यक है, उसी तरह से कला को एक साधन के रूप में, एक यंत्र के रूप में, एक अधिगम की प्रक्रिया के रूप में हर स्तर पे किस तरह से प्रयोग में लाया जाए। तो इसके ऊपर NCERT ने कार्य किया। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर न केवल ट्रेनिंग्स और लिखने के कार्य हुए, पर इस पर हमने रिसर्च किया। देश के लगभग 15 राज्यों में अलग अलग स्तर के जो हमारे विद्यालय हैं, खास करके जो मॉडर्न वाले स्कूल्स हमारे हैं, उनमें जाकर के इसके ऊपर प्रयोग किए गए और ये देखा गया कि ये विधा कितनी असरदार है। और उसके बाद अब हम निष्ठा में इसे अपने सारे साथियों के लिए एक पेडागॉजी के रूप में लेकर के हाजिर हुए। तो शुरुआत करते हैं इससे कि जब कला समेकित अधिगम की बात होगी तो हम लोग क्या ऐसा कार्य या क्या ऐसी एक्टिविटी शुरू में करें जिससे कि बच्चे कला भी कर पाएँ और सीख भी पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं आइस ब्रेकर के माध्यम से, जो आपको एक कक्ष में होते हुए भी दिखाया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आइस ब्रेकर होता क्या है। आइस ब्रेकर को जैसा नाम से ही हम सबको पता चल जाता है कि जब हम लोग किसी भी कार्य को शुरू करते हैं और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या यूँ कहिए कि एक धरातल पे नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी छोटी गतिविधि की जाए जिसके माध्यम से जो लर्नर है वो तैयार हो जाए अगले अधिगम के लिए। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसको हम बहुत औपचारिक रूप से नहीं कराते, प्रयास रहता है कि इसे एक खेल के रूप में दिया जाए और इसका समय 5 या 10 मिनट ही रहता है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको ऐसी कई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो जिस थीम पे आज की चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल को लेकर के वो है पानी, और पानी को के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए हमने वहाँ पे एक एक्टिविटी की जिसका कि एंड रिजल्ट था कि सबको ये लगने लगा कि हम एक बरसात के मौसम में बैठे। तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी एक कक्ष में कैसे की जाए। Frequency can be increased. Those who can really use their hands well. 3. Ice break. Follow ice break. 2. अब ये जो आइस ब्रेकर हमने किया, इस आइस ब्रेकर को आगे गतिविधियों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैं चाहूँगी डॉक्टर शर्वरी बात करें। हमने देखा कि उंगलियों से किस तरह पहले 1 उंगली की आवाज़, 2 उंगली की आवाज़, इस तरह से 5 उंगलियों की आवाज़, उसमें फिर से वापस आए 1 उंगली की आवाज़। तो ये एहसास है बच्चों के लिए कि वो किस तरह से बारिश आती है और जाती है, और उस बारिश का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। हम और भी क्लिपिंग आपको दिखाएंगे जिसमें देखेंगे कि बारिश से लोग कैसे बच रहे हैं, कि नीचे पानी है और वहाँ गड्ढा है और किस तरह से कूद के वो जा रहे हैं। ये सब गतिविधियाँ जो क्लास में करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे एक उसको समझ में आता है कि बारिश कैसे होती है, बारिश में किस किस तरह का वातावरण होता है, और या तो बारिश का आनंद लेते हैं, तो बारिश से बचते हैं, तो बारिश में खूब मज़े करते हैं। अब इस तरह की गतिविधि से हमें एक बच्चे का जो फोकस है वो बारिश पे हम ले आए, और उसके बाद बच्चे को हम क्या क्या समझा सकते हैं। मैं
आपको बताऊंगी कि हमारे एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में क्लास 9 के लिए एक कविता है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर। इसमें क्या है, मेघ कैसे आते हैं और किस तरह से हर तरफ छा जाते हैं, और मेघ के जो कण हैं वो किस तरह से चिड़िया, घास, पेड़ पौधे, मनुष्य को एकदम उत्साहित कर देते हैं। तो हमने पहले क्या किया था कि आइस ब्रेकर से हमने बच्चे को जो फोकस है वो तैयार कर दिया। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर उनके साथ पढ़ाएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, क्योंकि उन्होंने एक सामने इमेज को बना लिया है, विजुअलाइज कर दिया है। उसी तरह एक भाग 3 वसंत जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 8 के लिए, उसमें पानी की कहानी। हम जानते हैं कि जो बारिश है वो पानी का ही एक रूप है, तो किस तरह से पानी अपनी कहानी बताता है, ये एक निबंध है। उसके बाद हमारे कक्षा 7 में वसंत नहीं भाग 2 जो है उसमें एक कविता है, बरसे बदरिया सावन की मन भारी। ये मीरा बाई की रची हुई है। हमने जो बहुत सारे गाने भी सुने। तो हम इस तरह की जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में जो चैप्टर्स हैं उसको हम किस तरह से पानी का ये आइस ब्रेकर करके हम जोड़ सकते हैं। एक्चुअली जो है हमें फोकस चाहिए हमारे साहित्य को समझने के लिए, शब्दों को समझने के लिए, और जब बच्चा विजुअलाइज कर लेता है उसको कि बारिश में क्या क्या बातें होती हैं, तो ये सब हम लोग इजीली उनको पढ़ा सकते हैं। मकसद यही है आइस ब्रेकर। अब प्रोफेसर रुचि, आप यदि सभी दर्शकों को ये एक्सप्लेन This is the conclusion. Part is the naturals, as the sunshine and the vital as the punishment. Now the final is that is the thanks to all of you. I hope you enjoyed the session.